میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اچانک میرا منگیتر گھر پر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرنے لگا۔ امی نماز پڑھ رہی تھی، میں چلانے لگی اور غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ کچھ دن بعد شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں سمجھی میرا منگیتر سب کچھ بھول گیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے بدلہ ایسے لیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے پوری رات تک میں جلدی جلدی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ امی نماز پڑھ رہی تھیں اور اس کے بعد ہم دونوں نے بیٹھ کر ایک ساتھ رات کا کھانا کھانا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر شہزیب کے میسج ایک ساتھ دیکھوں گی، کیونکہ بہت دیر سے میرا فون بج رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ شہزیب ایک کے بعد ایک میسج بھیج رہا ہوگا۔ وہ میری پھوپھو کا بیٹا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی ہماری منگنی ہوئی تھی اور تب سے وہ ایسے ہی میرے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ سالن میں چمچ چلاتے ہوئے مجھے باہر موٹر سائیکل کے رکنے کی آواز آئی تو میں ایک دم ہی چونک گئی، کیونکہ یہ آواز میں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ شہزیب کی موٹر سائیکل کی آواز تھی۔ میں نے گھبرا کر امی کے کمرے میں جھانکا تو وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھیں۔ دراصل ہمارے پاس منگیتر سے ملنے کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ بھلے شہزیب میری پھوپھو کا بیٹا تھا، لیکن اس منگنی کے بعد اماں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اب تم شہزیب کے سامنے نہ آیا کرو۔ اگر کبھی میں غلطی سے اس کے سامنے آ بھی جاتی تو خود ہی پیچھے ہٹ جاتی، کہ مجھے خود بھی بہت شرم آتی تھی۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے دروازے پر مجھے ہی جانا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے دروازہ بجانے سے پہلے ہی میں نے دروازہ کھول دیا تھا، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے وہی بتا دوں گی کہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں اور چلتا کر دوں گی۔ وہ کبھی کبھار ہی آتا اور اماں سے مل کر چلا جاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شہزیب موٹر سائیکل سے اتر کر دروازے کے نزدیک آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آہستگی سے سلام کرتے اسے بتایا کہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی کام ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ وہ کہنے لگا، اس سے اچھا بھلا اور کوئی موقع مجھے مل سکتا تھا کیا؟ میں تو کب سے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ اندر آ گیا، اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شرم و حیا سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں نے ذرا آہستگی سے کہا، پلیز شہزیب ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، اماں کی نماز ختم ہونے میں وقت ہے۔ جیسے ہی ان کی نماز پوری ہوتی ہے میں انہیں بتا دوں گی کہ آپ آئے ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر میں گھبرا گئی۔ اوپر چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ پاس پڑوس والے اگر دیکھ لیتے تو بلا وجہ کا افسانہ بنتا، کیونکہ سب کو ہی بتاتا تھا کہ وہ میرا منگیتر ہے، اسی لیے میں ذرا گھبرا رہی تھی۔ شہزیب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا اور اگر اماں کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوں گی۔ میں گڑ گڑانے لگی تھی، مگر وہ تو جیسے میری کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ گھسیٹتا ہوا مجھے چھت کے کمرے میں لے گیا اور تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑایا اور اسے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ شہزیب کی کیا حرکت ہے! اس نے مجھے کمر سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ بس کچھ وقت تمہارے ساتھ سکون کے گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہاری اماں نے تو منگنی کے بعد 2 سال کا وقت لے لیا ہے، اتنا لمبا عرصہ کس کو انتظار ہوگا؟ ابھی تو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اس نے میرے دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور میری گردن پر جھکنے لگا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ بے شک میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی، وہ میرا منگیتر تھا، مگر اس طرح کی بے باکی کی امید نہ میں نے اس سے کی تھی اور نہ ہی میں کوئی ایسی بے باک حرکت کر سکتی تھی۔ میں نے تیزی سے اسے دھکا دیا اور غصے میں چیخ اٹھی، شہزیب پلیز حد میں رہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسٹور روم سے باہر نکلنے لگی تو اس نے پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، گناہ نہیں کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے لبوں پر جھکنے لگا اور میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ میں نے یہ حرکت اتنی بے اختیاری میں کی تھی کہ اسے تھپڑ مارنے کے بعد میں خود دم بخود رہ گئی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ میں ایک دم ہی رونے لگی، شہزیب سوری، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک دم تیزی سے مجھے دھکا دیتے ہوئے چھت کی سیڑھیاں اترا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی موٹر سائیکل کے جانے کی آواز سنائی دی تو مجھے ہوش آیا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، گھر کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اپنے آنسو صاف کرتے تیزی سے اماں کے کمرے کا رخ کیا۔ دیکھا تو اماں ابھی بھی نماز میں مشغول تھیں۔ انہیں شاید شہزیب کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کیا کروں۔
अम्मा को बताऊं या फिर चुप रहूं? मैंने तेजी से अपना फोन उठाया और शाहजेब का नंबर मिलाने लगी। मुझे उससे बात करनी थी, माफी मांग लेनी थी। बेशक उसने जो कुछ किया था वो गलत था, लेकिन मुझे उसे थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था। मैं बार बार उसका नंबर मिला रही थी, लेकिन कुछ देर बेल जाने के बाद उसका मोबाइल फोन ऑफ हो गया था और मैं जान गई थी कि मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया। मैं रोए चली जा रही थी, इतने में अम्मा की आवाज़ आई, बेटा शाहजेब आया था क्या? शायद उन्हें अंदाजा हो गया था। मैंने कुछ लम्हों की खामोशी इख्तियार की। मैं समझना चाह रही थी कि अम्मा को क्या जवाब दूं, और भी मैंने आहिस्तगी से कह दिया कि नहीं अम्मा, मुझे भी यही लगा था, इसीलिए दरवाजे पर गई थी, लेकिन कोई और था, शायद गली से गुजर रहा होगा। मैंने झूठ कह दिया था। अम्मी खामोश होकर वापस अपनी नमाज में लग गई थीं और मैं अपनी हांडी पूरी करके एक तरफ सर पकड़कर बैठ गई थी। आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और रह रहकर मुझे शाहजेब का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो बेयकीनी से मुझे देख रहा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मुझे पाने के लिए उसने कितने जतन किए थे, फिर मैं उसके साथ इतनी ज्यादती कैसे कर गई। मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। थोड़ी देर बाद अम्मा ने खाने के लिए आवाज़ दी, लेकिन मैंने कह दिया मुझे भूख नहीं है, बस नींद आ रही है, आप खाना खा लें, मैं सो रही हूँ। और मैं सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन दर हकीकत मैं सोने के लिए नहीं बल्कि आंसू बहाने के लिए तकिए का सहारा लेना चाहती थी। मैंने दोबारा शाहजेब का नंबर मिलाया था, लेकिन उसका फ़ोन अब भी बंद ही जा रहा था। जब बहुत देर तक मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी सहेली रिदा को फ़ोन मिला दिया। मैं अपने दिल की हर बात उसी से कहती थी। वो मेरी पक्की सहेली थी और मेरी खाला की बेटी भी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं रोने लगी तो वो घबरा गई। क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? रिदा मेरी रोती हुई आवाज़ सुनकर घबरा गई थी, जबकि मेरा रोना ही ख़त्म नहीं हो रहा था। रिदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शाहजेब मुझसे मिलने के लिए आया था और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने थोड़ी बहुत बात उससे बताकर अपनी गलती बताई थी और वो हैरान रह गई थी। कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? शाहजेब भाई तो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी खातिर पूरे ख़ानदान से झगड़ा किया है, तुमने उनके साथ ऐसी ही हरकत कर दी। मैंने उसे बताया कि शाहजेब मेरे करीब हो रहा था, बस इसीलिए मुझसे दानिस्ता तौर पर गलती हो गई। रिदा कहने लगी, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो और कोशिश करो कि किसी तरह उससे बात करके माफ़ी मांग लो और उसे समझा दो कि शादी तक वो अपनी हद पार ना करे। रिदा से बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी, लेकिन मैं सारी रात करवटें बदलती रही थी। अगर वो फुप्पो से कुछ कह देता, अगर वो ये रिश्ता ख़त्म कर देता। ये वो बातें थी जो मेरी जान निकाल रही थी और मैं बेइंतहा परेशान होकर रह गई थी। दरअसल जब शाहजेब ने पहली बार मुझे प्रपोज किया था तो उस वक्त मैं 10वीं जमात में थी। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। तब मैं बुरी तरह घबरा गई और मैंने सख्ती से उसे कहा कि वो आइंदा ऐसी कोई बात ना करे, क्योंकि मैं जानती थी कि फुप्पो अम्मा को पसंद नहीं करती और वो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगी। मेरी अम्मा और फुप्पो में रिवायती नंद भाभी वाले झगड़े सालों से चल रहे थे। अब्बा के इंतकाल के बाद तो फुप्पो ने हमारे घर में आना जाना भी छोड़ दिया था। उनका इकलौता बेटा शाहजेब था जो हर हाल में हमारे घर के चक्कर लगाता था। वो बचपन से ही मेरी अम्मा के करीब था, इसीलिए अम्मा से मिलने के लिए आ जाता। इस बात पर भी फुप्पो ने कई बार झगड़ा किया था और अम्मा को कहा था कि तुमने अब मेरे इकलौते बेटे पर कोई जादू कर दिया है। वो अक्सर ही इस बात पर शाहजेब से भी बहुत लड़ाई करती थी कि वो हमारे घर क्यों आता है। अगर ऐसे में उन्हें पता चल जाता कि शाहजेब मुझे पसंद करने लगा है तो वो उसे भी अम्मा की कोई चालाकी करार देती हैं, फिर हमारा बिछाया हुआ कोई जाल। इसीलिए मैंने पहले मरहले पर शाहजेब की मोहब्बत को ठुकराना मुनासिब समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका है। उसका हमारे घर के चक्कर काटना, अम्मा के बहाने मिलने आना, वो सब मेरे लिए था। और जब मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास हुआ उस वक्त मैं जवानी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। 15 साल की उम्र ही क्या होती है। अगर ऐसे में आपको पता चले कोई आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपके लिए दीवाना है, आपको फूल, तोहफे और चॉकलेट दे, तो आपके दिल में खुद ब खुद उसके लिए जज्बात पैदा हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाहजेब की मोहब्बतों की दास्तान सुन सुनकर धीरे धीरे मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ माइल होने लगा था। मुझे लगता था कि शाहजेब भी मेरी जिंदगी का मरकज बनकर रह गया है और उसके बगैर मैं अधूरी हूँ। और फिर 2 साल तक हमने खामोश मोहब्बत की नजर की है। वो आता तो बस अपनी आंखों से मुझे अपने दिल का हाल कह सुनाता और मैं उसे देखकर रह जाती। फिर किसी मौके पर उसने मुझे मोबाइल फ़ोन तोहफे में दिया तो अम्मा ने साफ मना किया और कहा कि तुम्हारी अम्मा को पता चला तो बिला वजह हंगामा खड़ा करेंगी। वैसे भी ना जिया को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है और ना ही हम इतना महंगा तोहफा कबूल कर सकते हैं। मगर अम्मा की बात पर वो नाराज़ हो गया। कहने लगा, मामी मैं इतनी मोहब्बत से एक तोहफा लाया हूँ, आप इनकार नहीं कर सकती। और उसने ज़बरदस्ती मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। उसके बाद क्या था, बस हर रात वो मुझे फ़ोन करता और घंटों मुझसे बातें करता। कभी मैं डर कर फ़ोन ऑफ कर देती तो
تو کبھی بس تھوڑی دیر بات کر کے اسے منع کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی دیوانگی تو اپنی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اور پھر ایسی ہی ایک رات جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا، پھپھو نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھینا، اور انہیں ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف میں ہوں۔ وہ ایک دم ہی غصے میں کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایک آوارہ اور بد کردار لڑکی ہو اور بدکار لڑکی ہو، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ہی بیٹے کو پھنسا لوگی، اسی لیے اسے اپنے گھر کے چکر لگوایا کرتی تھی۔ مجھے اگر ذرا بھی پتا ہوتا کہ تم اور تمہاری ماں اپنی حد سے اتنا گر جاؤ گے تو میں کبھی اپنے بیٹے کو تمہارے دروازے پر آنے بھی نہیں دیتی۔ صبح میں خود تمہارے گھر آؤں گی اور تمہاری ماں کے ساتھ پورے محلے کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ ہر کسی کو بہت ہمدردی ہے نا کہ تمہاری ماں بیوہ ہے، تم یتیم ہو۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ تم دونوں بغیر مرد کے کیا کیا گل کھلا رہی ہو۔ پھپھو کی باتوں نے میری جان نکال دی تھی۔ میں فوراً رونے لگی۔ پھپھو پلیز، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن پھپھو کو کوئی بھی بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے وہ سارے میسیجز بھی پڑھ لیے تھے جو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کیے تھے، اور اگلی ہی صبح وہ ہنگامہ کرنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لا چکی تھیں۔ انہوں نے اتنا شور شرابہ کیا تھا اور ساتھ ہی دوسری پھپھو کو بھی بلایا تھا۔ ہمارا پوری گلے محلے میں تماشا بن گیا تھا۔ ہر کوئی ہمارے دروازے سے کان لگا کر کھڑا تھا اور پھپھو کے چیخنے چلانے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ جب شہزیب کو خبر ہوئی کہ پھپھو ہمارے گھر آئی ہیں تو وہ بھی پیچھے سے چلا آیا اور پھر اس نے ہی جیسے تیسے انہیں روکا، لیکن جب تک پھپھو مجھ پر اور میری بیوہ ماں پر ہزاروں بہتان باندھ چکی تھی اور چھوٹی پھپھو بھی برابر سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ دراصل میری اماں کا پورا سسرال ہی انہیں ناپسند کرتا تھا اور اس کی وجہ میرے ابا کی ان سے پسند کی شادی تھی۔ ابا نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر میری اماں سے شادی کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ پھپھو انہیں پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر ابا کے انتقال کے بعد تو وہ کھل کر مخالف ہو گئی تھی اور اب شہزیب اور میری محبت میں ان کی ماضی کی دشمنی کو ہوا دے دی تھی۔ شہزیب نے آ کر انہیں روکا اور سختی سے کہا کہ اگر آپ نے میری شادی جیا سے نہیں کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو تڑپ دی، پھر کہنے لگی، دیکھ رہی ہو نا جیا، تمہاری وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا اپنی جان لینے کی بات کر رہا ہے۔ تو ماں بیٹی نے یہی تو گل کھلائے ہیں۔ پہلے تمہاری ماں نے ہمارے بھائی کو پھنسا لیا اور اب تم نے میرے بیٹے کو۔ ہمارے خاندان کے اچھے پڑھے لکھے ہر مرد پر تم دونوں ماں بیٹی کی نظر ہے۔ چھوٹی پھپھو نے بھی برابر سے پھپھو کا ساتھ دیا تھا اور میری ماں کے کردار کو پوری طرح سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ دونوں خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تب شہزیب نے اچانک ہی کچن کا رخ کیا اور چھری اٹھا کر لے آیا اور اپنی گردن پر رکھ لی۔ اگر اب آپ خاموش نہیں ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ میں جیا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ اور وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ میں گھبرا کر بری طرح رونے لگی اور پھپھو بھی خوف زدہ ہو گئی۔ شہزیب، خدا کے واسطے اسے رکھ دو، کہیں تمہیں غلطی سے بھی لگ گئی تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ چھوٹی پھپھو بھی اسے سمجھا رہی تھی لیکن اس کی تو آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی اور اسی وقت ہماری شادی کا اعلان نہیں کیا تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ اور اسی کا یہ حربہ کام کر گیا تھا۔ پہلے تو پھپھو اسے سمجھاتی رہی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے تو انہوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں اس بد کردار لڑکی کو بھی بہو بنانے کو تیار ہوں۔ اور اس بلیک میلنگ میں وہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کی زندگیاں بدلنے والا تھا، مگر میری اماں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، میں ایسے بلیک میل ہو کر اپنی بیٹی تم جیسے ناقدروں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں نے ساری زندگی میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اب میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کرو گے۔ میں کسی اچھے گھرانے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی۔ اماں کا ارادہ تھا کہ وہ میری شادی میرے ماموزاد بھائی سے کریں گی۔ وہ اچھا پڑھا لکھا تھا، قابل تھا اور اماں کو بہت پسند تھا، لیکن شہزیب اماں کے قدموں میں گر گیا۔ اپنی ماں کو راضی کرنے کے بعد اس نے نہ جانے کیسے کیسے منتیں کر کے میری ماں کو بھی منا لیا اور یوں ایک ہفتے بعد ہم دونوں کی سادگی سے منگنی ہو گئی۔ بے شک اس کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی لیکن اکلوتے بیٹے کے آگے مجبور ہو کر وہ خود ہماری دہلیز پر آئی تھیں۔ مجھے تو پھپھو سے بہت خوف آ رہا تھا لیکن شہزیب کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا، لیکن اماں نے شادی کے لیے 2 سال کا وقت مانگا کیونکہ سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا اور اماں اپنی اکلوتی بیٹی یعنی مجھے دھوم دھام سے رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ پھپھو نے اس دن کے بعد دوبارہ ہمارے گھر قدم نہیں رکھا، البتہ شہزیب نے آنا جانا جاری رکھا تھا، مگر اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ پہلے ہی محلے میں بہت تماشا بن گیا ہے، میں اب مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ کئی دنوں تک محلے میں ہمارے گھر کے تذکرے ہوتے رہے تھے، ہر زبان پر یہی چرچا تھا کہ جیا کتنی چھوٹی اور معصوم لگتی تھی، کتنا بڑا چکر چلا لیا۔ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات خود بھی سنی تھی، اسی لیے مجھے اندازہ تھا کہ شہزیب کی محبت نے کیسی بدنامی کو میری دامن میں ڈالا ہے، اور اب میں اماں کے کہنے کے بعد بہت احتیاط کرتی تھی، مگر شہزیب ہر وقت بے قرار رہتا، فون پر بھی بات کرتا تو حد سے تجاوز کرنے لگتا، ملنے آتا تو اس کا بس چلتا تھا کہ کسی طرح اماں کو منظر سے غائب کر کے وہ مجھے اپنے پاس بٹھا
समझा ले, मगर मैं हमेशा अपनी हदों में रहती और यही वजह थी कि हमारे दरमियान बहुत कम बात होती थी। मैं जानबूझकर देर रात को उसका फ़ोन भी नहीं उठाती थी कि कहीं वो ऐसी वैसी कोई बात न कर दे। लेकिन अच्छा क्या मालूम था कि वो जज्बात में इतना पागल हो जाएगा कि ज़बरदस्ती मुझे ना सिर्फ छत पर बने कमरे में ले जाएगा बल्कि अपनी हदों को भी पार करने की कोशिश करेगा। और इसी चक्कर में मैंने उसे थप्पड़ लगाकर सब कुछ अपने हाथों से खराब कर लिया था। अब ना वो मेरा फोन उठा रहा था, ना मुझसे बात कर रहा था। अगला पूरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा नौकरी करने लगी थी, इसीलिए अम्मा सुबह उठते ही अपने गाँव पर चली गयी और मैं सारा दिन बस बार बार शाहजेब का फोन मिलाती रही, लेकिन उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। यही खौफ सता रहा था कि अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो क्या होगा। मेरे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत थी कि मैं खुद उसके बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। वो सिर्फ कुछ लम्हे मेरी साथ तन्हाई में ही तो गुजारना चाहता था। मुझे उसे मौका देना चाहिए था। मैं मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि उसकी गलती को भी जस्टिफाई कर रही थी और अपने सही कदम को भी गलत ठहरा रही थी। शायद मोहब्बत इंसान को इतना ही अंधा कर देती है कि मुझे लग रहा था कि मुझे उसे वो सब करने देना चाहिए था जो वो चाहता था। फिर उसी रात शाहजेब ने मेरा फोन उठा लिया। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं तड़प उठी और रोने लगी। शाहजेब, खुदा के वास्ते मुझसे बात करो, मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम भी हद से तजावज़ कर रहे थे। अगर अम्मा को पता चल जाता या फिर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो गलती उसकी थी, लेकिन रोते हुए माफ़ी मैंने मांगी थी। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा और मिलकर माफ़ी मांगोगी, तभी मैं माफ़ करूँगा। मैंने खौफजदा होकर कहा कि मैं कैसे मिलूंगी, तुम्हें पता तो है कि अम्मा इजाजत नहीं देंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। फिर मैंने आहिस्तगी से उठकर देखा तो अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद था। वो गहरी नींद में थी। वो सुबह फजर में उठती, फिर सारा दिन नौकरी पर मेहनत करती, इसीलिए रात भी जल्दी सो जाया करती थी। जब मैंने उन्हें गहरी नींद सोते देखा तो दबे पांव दरवाजे पर गई और दरवाजा खोल दिया। शाहजेब बाहर खड़ा था। वो अंदर आया और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गया। कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं तो सिर्फ मोहब्बत करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे मुंह पर तमाचा लगा दिया। उसके अंदाज में नाराजगी थी। मैंने फौरन हाथ जोड़ लिया। प्लीज शाहजेब, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी तुम करते हो, लेकिन बस मैं उस वक्त थोड़ा घबरा गई थी। मैंने उसे मनाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो वो मुस्कुरा दिया, मुझे अपने करीब खींचा और कहने लगा, ठीक है, उस दिन घबरा गई थी, आज तो नहीं घबराऊंगी। मैं चाहता हूँ कि आज शुरुआत तुम करो और हम मोहब्बत भरा कुछ वक्त गुजारें। उसकी आंखों में फिर से वही चमक दिखाई दी थी और मेरी जान निकली थी। शाहजेब प्लीज, ये सब शादी के बाद भी तो हो सकता है। वो कहने लगा, हाँ, शादी के बाद तो होगी, लेकिन अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो शादी से पहले मुझे अपनी मोहब्बत साबित करके दिखाओ। उसकी बात पर मैं खौफजदा हो गई, लेकिन अब मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहती थी। ये 2 दिन मैंने किस अजियत में गुजारे थे कि सिर्फ मैं ही जानती थी। इसीलिए आगे बढ़कर मैं उसके सीने से लग गई। उसने मुझे वहीं स्टोर रूम की टूटी हुई चारपाई पर लिटाया और धीरे धीरे मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। मुझे उस दिन सिर्फ मोहब्बत का एक बोसा देना चाहता था, आज पूरी तरह मुझे हासिल कर लेने को बेताब था। मैं उसे रोकना चाहती थी, मगर वो रुकने को तैयार ही नहीं था और मुझ में भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे नाराज करती। इसीलिए धीरे धीरे वो मुझे बेलिबास करता, मुझसे सारे हक वसूल कर गया था। वो सारे हक जो मैं उसे शादी के बाद देना चाहती थी। मेरी सिसकी और आहों से कमरा गूंज रहा था और उसकी शिद्दतें बुरी तरह मुझ पर निछावर हो रही थीं। वो मेरी गहराइयों में समाता दीवानों की तरह मुझे पागल कर रहा था। मैं कभी उसके बाजू को नोचती तो कभी उसकी कमर पर अपनी उंगलियों से निशान छोड़ती और वो मेरे दिल की धड़कनों को मसलता हुआ मोहब्बत की इंतहाओं को पार कर गया था। घंटे बाद जब वो फारिग हुआ तो मेरी आंखों में शर्मिंदगी थी। नजरें झुकाए मैं शर्म से चूर बस अपने इस अमल पर पछता रही थी कि मैंने उसे रोका क्यों नहीं, लेकिन वो पूरी तरह मसरूर था। कहने लगा, मैंने अम्मा से बात कर ली है, जल्द ही मैं रुखसती करवा लूंगा, इससे ज्यादा मुझे इंतजार नहीं होगा। गहरी निगाहों से मुझे देखता हुआ वापसी चला गया था और मैं उसके जाने के बाद अपने कमरे में आकर लेट गई थी। एक तरफ उसे मना लेने की खुशी थी तो दूसरी तरफ अपने आप को खो देने का गम। जो कुछ भी हुआ था, भले ही उसमें मर्जी मेरी शामिल थी, लेकिन मेरा दिल रजामंद नहीं था। मैंने ये कदम सिर्फ उसे मनाने के लिए उठाया था और अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैं जानती थी ये गुनाह है, गलत है, लेकिन अब मैं ये सब कुछ कर चुकी थी सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझसे दूर ना हो। उस दिन के बाद वो हर दूसरे दिन मुझसे मिलने की फरमाइश करने लगा था। कभी मैं टाल देती तो कभी हम स्टोर रूम में फिर एक साथ वक्त गुजारते और वो मुझे यकीन दिलाता कि जल्द ही वो अम्मा से शादी की बात करेगा। फिर महीने बाद मुझे खबर मिली
जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उम्मीद से हो चुकी थी। जब ये बात मैंने शाहजेब को बताई तो वो कहने लगा, तुम परेशान ना हो, मैं अम्मा से बात कर चुका हूँ। वो आज या कल में आकर हमारी शादी की बात करेंगी। और फिर 2 दिन बाद फूफो हमारे घर आ गई थी। उन्होंने अम्मा से कहा कि तुम्हारी बेटी के पीछे मेरा बेटा पागल हो गया है। मैं उसे बहू नहीं बनाना चाहती, लेकिन बेटे की खातिर दोबारा तुम्हारी दहलीज पर आई हूँ। अब उसे शाहजेब के नाम लगा दो। अम्मा कहने लगी कि अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं शादी जैसे बड़े काम के लिए हामी कैसे भर लूं। लेकिन फूफो कहने लगी, अगर तुमने हाँ नहीं कही तो मैं एक तरह से रिश्ता खत्म समझो। अम्मा ये सुनकर गड़बड़ा गई। फिर उन्होंने मेरी खातिर घर गिरवी रखा और इसी महीने शादी के लिए हामी भर के तैयारियां शुरू कर दी। मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। कभी उल्टी आती तो कभी चक्कर, लेकिन मैंने अम्मा से हर बात बड़ी चालाकी से छुपाई थी। हाँ, अलबत्ता शाहजेब को सब कुछ मालूम था और वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि रुखसती के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर शादी वाला दिन आया तो मैं दुल्हन बनकर बेइंतहा खुश थी। मेरी और शाहजेब की मोहब्बत हमेशा के लिए एक होने जा रही थी। उसने जो कहा था वो सच कर दिखाया था। मैं रुखसत होकर उसके साथ उसके घर पहुंची तो मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फूफो पहले ही अपने कमरे में चली गई थी। छोटी फूफो और उनकी बेटियां मुझे अजीब और गरीब निगाहों से देख रही थी। मैं खुद ही जाकर शाहजेब के कमरे में बैठ गई थी। ये सब मुझे बहुत अजीब तो लगा था, लेकिन मैं जानती थी कि फूफो इतनी आसानी से मुझे कबूल नहीं करेंगी। मुझे उन्हें मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। कुछ देर बाद शाहजेब कमरे में आया तो मैंने शर्माकर नजरें चुरा ली। उसने अजीब नजरों से मुझे देखते हुए सख्ती से कहा, उठो और बिस्तर से खड़ी हो जाओ। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। उसे ऐसे मजाक करने की आदत थी। मैंने हंसकर कहा, शाहजेब क्यों तंग कर रहे हो? थक गई हूँ मैं बहुत। मगर अगले ही पल उसका लहजा बहुत ऊंचा हो गया। वो एकदम गुस्से से कहने लगा, उठो और खड़ी हो जाओ। मैं खौफजदा होकर तेजी से उठकर खड़ी हो गई और मिनमिनाने लगी, शाहजेब क्या बात है, क्यों गुस्से में हो? पप्पो ने कुछ कहा है क्या? वो मेरे करीब आया, मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगा कि मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। शाहजेब ने मुझ पर बिजलियां गिराते मुझे 3 दफा तलाक कह सुनाया था और मैं चकराकर वहीं फर्श पर बैठ गई थी। शाहजेब के चिल्लाने की आवाज़ पर फूफो भी कमरे में आ गई थी और उन्होंने भी ये तलाक के लफ्ज़ सुन लिए थे। वो खुद हैरान थी कि आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने शाहजेब से पूछा तो वो कहने लगा, अम्मा ये बहुत ही बदकिरदार है। मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उससे शादी ही ना करता, लेकिन मुझे अभी पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया कि इसके तो कई लड़कों से ताल्लुकात हैं और ये उम्मीद से भी है। ये सुनना था कि मेरी फूफो ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर तमाचा लगा दिया। इतनी जोरदार तमाचा कि मुझे सारा जहां घूमता हुआ महसूस हुआ। मुंह पर हाथ रखे मैं फटी फटी निगाहों से शाहजेब को देखने लगी, जिसके लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई थी, जैसे माजी का कोई हिस्सा पूरा हो गया हो। और लम्हे भर में मुझे वो मंजर याद आ गया था जब मैंने उसके मुंह पर तमाचा लगाया था। मेरी फूफो ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और कहने लगी, बेशरम बेहया, क्या शाहजेब सच कह रहा है? उससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, शाहजेब ने वो रिपोर्ट अपनी माँ के हाथ में पकड़ाई थी जो मेरी उम्मीद होने का सबूत थी। ये रिपोर्ट मैंने डॉक्टर के पास से आने के बाद शाहजेब को दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस रिपोर्ट को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट देखने के बाद फूफो ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और मैं रोती पीटती वापस अपने घर चली आई थी। अब तो मुझे तलाक का दाग भी मिल चुका था। अम्मा ने आधी रात को मुझे दरवाजे पर देखा तो परेशान हो गई। मैंने उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी कि किस तरह शाहजेब ने मुझे तलाक दी और मुझसे बदला लिया। मेरी बात सुनकर अम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगी कि बेशरम बेहया, इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे रोका था। कहा था ना मैंने कि तन्हाई में उससे ना मिलना, कभी उसके सामने ना जाना। मर्द और औरत के बीच तीसरा शैतान होता है और उसी शैतान ने देखो तो उससे कैसे गुनाह करवा दिए। तो उसकी मोहब्बत में इतना कैसे बहक गई कि मेरी तरबियत को भूल गई। मोहब्बत करना गलत नहीं, लेकिन अपनी हदों को पार करना बेइंतहा गलत है। तूने बहुत बड़ा गुनाह किया और शाहजेब ने बदला लेकर तुझे सजा भी दे दी। अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? कैसे साबित करेगी तू कि ये बच्चा शाहजेब का है? मैं रोने लगी क्योंकि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैं चकराकर बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया था कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। मेरे मामू भी वहाँ मौजूद थे। वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें सारी बात पता चल गई थी। उन्होंने शाहजेब के घर जाकर भी बहुत हंगामा किया था, लेकिन अभी सबको कोई फायदा नहीं था। वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं था। वो मुझे हासिल कर चुका था, मुझसे बदला ले चुका था। उसकी मोहब्बत दफन हो गई थी और अब उसकी जिंदगी में मेरी
कोई जगह नहीं थी। मैं वापस अपने घर आ गई थी। मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी थी। खानदान में फूफो ने हमें बदनाम किया था। कोई भी शाहजेब को कसूरवार ठहराने को तैयार नहीं था। सब मेरी ही जात पर कीचड़ उछाल रहे थे और मैं बस अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। फिर तलाक के कागजात भी हमारे दरवाजे पर आ गए और सब कुछ खत्म हो गया। इस बात को तकरीबन 6 महीने गुजर गए थे। एक दिन मामू हमारे घर आए और कहने लगे कि मैं शर्जील के लिए जिया का रिश्ता चाहता हूँ। हमारी तो पहले भी यही ख्वाहिश थी कि ये शर्जील की दुल्हन बने, लेकिन उस वक्त किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अम्मा रोने लगी, कहने लगी कि तुम तो जानते हो कि मेरी बेटी के दामन पर कैसा दाग लग चुका है। ऐसा न हो कि भाभी और शर्जील को इस बात पर एतराज हो। मामू मुस्कुराए और कहने लगे, मैं उन दोनों की इजाजत से यहाँ आया हूँ। उन दोनों में से किसी को इस बात पर कोई एतराज नहीं है। अगले महीने में मेरा और शर्जील का सादगी से निकाह हुआ और मामू मुझे रुखसत करवा कर ले गए। मैं दुल्हन बनी शर्जील के कमरे में बैठी थी, लेकिन न दिल में कोई अरमान थे न ख्वाहिश। हाँ, अलबत्ता मैं बेइंतहा खौफजदा थी। शादी के नाम पर मेरा दिल लरस रहा था। जो कुछ शाहजेब ने मेरे साथ किया था, उसके बाद मुझे ये डर था कि शर्जील न जाने कैसा सलूक करेगा। लेकिन जब शर्जील कमरे में आया और उसने आहिस्तगी से मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहा कि वो मेरे माजी को कभी दोहराना नहीं चाहता और ना ही कभी हमें इस बारे में बात करेंगे, तो मुझे जैसे तसल्ली हो गई। फिर धीरे धीरे मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। उसने कभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, न कभी उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए बेइंतहा जगह थी और इसीलिए तो उसने मेरी सच्चाई जानते हुए भी मुझे कबूल कर लिया था। मामी ने भी खुले दिल से मुझे कबूल करते अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगी थी, आगे बढ़ने लगी थी, सब कुछ भूल चुकी थी कि एक दिन जब मैं अम्मा के घर गई तो मुझे पता चला कि शाहजेब का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों पैरों से माजूर हो गया है और वो मुझसे माफी मांगना चाहता है। मैंने अम्मा की बात पर कोई जवाब ना दिया और वापस अपने घर आ गई। फिर अगले हफ्ते माजूर शाहजेब फुप्पो के साथ हमारी दहलीज पर आ गया। मेरे मामू और मामी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। शर्जील खुद उससे मिलने के लिए गया और फिर उन सब के सामने शाहजेब ने मुझसे माफी मांगी, अपने हर गुनाह का इकरार किया। फुप्पो भी बेइंतहा शर्मिंदा थी। उनकी सच्चाई खुद ही सबके सामने आ गई थी और मैं ना चाहते हुए भी उसे माफ कर चुकी थी, क्योंकि अगर मैं उसे माफ ना करती तो शायद सारी जिंदगी में खुद को किसी अनदेखे बोझ तले दबी रहती। इसीलिए उसे माफ करके अपनी जिंदगी में खुशियों के साथ आगे बढ़ने को मैंने चुन लिया था। वो और फूफो जा चुके थे और शर्जील मुझे सीने से लगाए हनीमून का प्लान बना रहे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हाँ, अलबत्ता कभी माजी में झांकती तो इस बात का अफसोस जरूर होता कि मैंने एक नामहरम रिश्ते पर भरोसा करते उसे अपनी हद पार करने की इजाजत देकर अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया था।